Hello and welcome to the IDEM Interactions. The IDEM is the first trilingual portal from Kerala, and as all of you know, we are now in Uttar Pradesh covering the most crucial elections in the state. With me today in this very special place called Shiro's, which has become a new landmark in Lucknow, a place run by a restaurant, a hangout run by acid attack victims, and becoming a new landmark in Lucknow. With me are three renowned journalists of the state, people who have pursued different streams of journalism but all linked to the people's lives and core issues of society. With me is Pooja Avasthi, who is the senior journalist with Week. She has been a long-standing journalist of this place, worked with many organizations, and she specializes in ground-level reporting, environmental issues, gender-related issues, and I've always been fascinated by the kind of work that she has been doing. Thank you so much. Along with Pooja is Sanjay Sharma, who is now a new star in the social media space of Uttar Pradesh, in the Hindi social media space. He runs a widely watched, widely circulated YouTube channel called 4 PM News Network, which is there's also a newspaper, a daily of the same name, 4 PM News. And recently, his YouTube channel mysteriously disappeared, and neither YouTube nor authorities could say who had made it disappear. There is also the fact that Sanjay Sharma has been throughout his journalism career a steady anti-establishment voice. Whoever is in power, he goes after them and they get irritated by him. And of course, with me is also Deepak Gidwani, a very old friend of mine. Deepak's latest claim to fame is that he's in the Pegasus list and he was being snooped upon. So Deepak, welcome to you also. Thank you. So Sanjay, of course, has got a show in a few minutes' time, so I'll start with him with the permission of all of you. Sanjay, of course, we are in the midst of this election. Everybody says it's a stiff election. Everybody says that there's a new caste churning. How do you look at this election? मुझे लगता है कि ये चैनल लगभग एक तरफा है। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी थी वो चाहती थी कि ये चुनाव धर्म के आधार पे हो जाए, हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए। तो उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो वेस्टर्न यूपी जिसको आप बोलते हैं, वहाँ बड़ी कोशिशें हुई। हमारे चीफ मिनिस्टर ने, मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे भाषण दिए और कहा मैं गर्मी निकाल दूँगा, मई जून में शिमला बना दूँगा। इशारा साफ था कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ये हाल कर दूँगा। इस बहाने से वो हिंदू कम्युनिटी को एक करना चाहते थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी है, पिछली जाति में आती है, उसको लगा कि ये हमारे ऊपर हमला है। नतीजा वो बाउंस बैक हुआ। बट लेकिन पिछले चुनावों में जाट भी इसी वो हिंदू मुस्लिम का वो नैरेटिव के हिस्सा था। पूरा चुनाव पिछला 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा चुनाव इसी का हिस्सा था। लेकिन किसान आंदोलन ने उस पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। किसान आंदोलन में टिकैत के मंच पे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे साथ साथ लगे। तो वहाँ की जो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है, दलित भी इनके साथ आ गया, गुजर, जाट, मुस्लिम, एक कॉम्बिनेशन बन गया। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को दांव उल्टा पड़ा। तो वेस्टर्न यूपी से जो एक पिछड़ी जातियों की गोलबंदी जो बोलती हैं वो शुरू हुई, वो पूर्वांचल तक दिखाई दे रही है। तो पूरा चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान ना होके अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति बन गया। योगी जी जिस कम्युनिटी से आते हैं, ठाकुरवाद का प्रचलन पूरे प्रदेश में हो गया। लोग कहने लगे योगी आदित्यनाथ का ठाकुरवाद है। और ब्राह्मण और ठाकुर उत्तर प्रदेश में दो जातियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी रहती हैं। ब्राह्मण बड़ा डोमिनेट जाति है, तो ब्राह्मण योगी के ठाकुरवाद की वजह से नाराज़ हैं। हम 4 फेस हो चुके हैं। बीजेपी के जो गढ़ माने जाते हैं पोल, वहाँ पे भी वोटिंग का परसेंटेज बहुत नीचे आ रहा है। आरएसएस के चीफ ने कहा कि ये वोटिंग कम क्यों हो रही है। आरएसएस के लोग लगे, कारण ये है कि जो ऊंची जाति के वोट थे, जो गैर ठाकुर थे, वो वोट डालने नहीं निकल रहे। तो चुनाव, मुझे लगता है ये चुनाव बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रहा है। आसान नहीं।
Pooja, you, of course, beyond real politics, you always look at core issues of the people. And of course, you always followed the society very closely. Do you agree with what Sanjay is saying? This is definitely a very closely fought election. There is a yearning for change, especially among the young. Unemployment has been a big issue in the state despite claims which the government has made. The government figures in fact include very temporary contractual workers as well. So that has been building up to a very strong anti-government sentiment in many parts of the state, which has a huge youth population. In the West, yes, the BJP seems to be sliding down, but we also have to keep in mind the fact that the RLD, which is supposed to have this grip over Jat votes, actually drew a knot in the last election. So for the RLD, this is a kind of a do or die election, and the interactions that I have had with people, they've told me that the BJP has found it difficult to even enter villages in Western UP. Yeah, but the fact also remains that the core caste vote base of the BJP, like the Brahmins, the Thakurs, the upper caste, and the kind of deep penetration the party has made into the non-Yadav OBC vote and non-Jat of Dalit vote, that still remains. Well, I think one point with the BJP is that once it tries to get a community or a caste to be with it, it then makes inroads to cultivate its own leaders in that community. An example being Swami Prasad Maurya ji was called in just before the last election. And then what happened? The BJP actually then tries to sideline these leaders and cultivate its own inroads into the community. So that leaves resentment, because why are these communities joining with the BJP? Because they want some kind of representation. And if that is being denied, then how does it serve the caste purposes? That's a very interesting point. Deepak, you've also been a very close watcher of politics in this state for a very long time. Of course, you have worked across India. You have worked in very many papers. You have worked in Punjab. You have worked in Jammu and Kashmir. So, but looking at this core phenomenon of UP, which is of course caste politics, and what Sanjay has said about this new churning in terms of caste politics, what do you think about what Pooja was saying, what Pooja and Sanjay were saying? I would take a different view on this. As Sanjay said that this election finally did not turn out to be a Hindu-Muslim one. I agree that it has not turned out to be a communal election. But this is definitely an election between the Samajwadi Party and the BJP. Direct. It's a direct conflict. It's a head-on. And this, I think, is the script that BJP wrote. And BJP always wanted it to be that way. And from the beginning, आप शुरू से देखें कि सारे भाजपा के नेता यही कहते रहे, अखिलेश आ गया तो गुंडई बढ़ जाएगी, अखिलेश आ गया तो आतंकवादी आ जाएंगे, अखिलेश आ गया। वो अखिलेश का एक हवा क्रिएट कर रहे थे और उसको स्ट्रेंथ भी दे रहे थे, इमेज करके उसकी ऑरा क्रिएट की। आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट दे स्ट्रेंथन द कोर वोट ऑफ समाजवादी पार्टी अकॉर्डिंग टू देयर दे कैन हैव अ बूथ। हाँ, तो बूथ पे जाके फिर वही होता है ना कि उधर लाइन लगेगी तो इधर भी लगेगी। आप एग्री करेंगे? नहीं, मैं ये उन्होंने कर लिया। मैं इसलिए एग्री नहीं करूंगा कि बीजेपी पहले दिन से इस बात से परेशान थी कि मुकाबला अखिलेश बनाम योगी ना हो। उसका नुकसान ये था कि जहाँ जहाँ देश में भी 2 चुनाव हुए हैं जहाँ पे बीजेपी को जिताओ या बीजेपी को हराओ, तीसरा फ्रंट नहीं हुआ है, तो बीजेपी हर उस जगह हारी है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट एक चैनल का फंक्शन चल रहा था, उसमें लाइव कह रहे थे वो कि आप लोग मायावती को कम मत समझिए, मायावती का भी बहुत वोट बैंक है। अभी कल अमित शाह ने कहा है कि मायावती को भी मुसलमान जा रहे हैं, दलित जा रहे हैं। मायावती सीन से बाहर हो गई है। दलितों को ये डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो वो सरकारी सेक्टर को निजी हाथों में दे देगी, हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। मायावती का वोट बैंक टूटकर दलितों का बड़ा हिस्सा पासी समाज मैंने देखा है सपा की तरफ आते हुए। तो भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि चुनाव 2 पोल हो जाए। वो कांग्रेस के प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाना देने के परमिट देती है, लेकिन अखिलेश को रोक देती है। कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करती, चाहती थी कि बंटवारा हो। अगर अपोजिशन का वोट एक जगह आ गया तो बीजेपी तो 100% हार गई, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव यहीं आ गया, भाजपा बनाम सपा। लेकिन पश्चिम में मैंने ये भी सुना कि ये बीएसपी का जो इनएक्शन जो है फील्ड में, उसका कारण जो जाटव वोट है, जिसका कोर वोट है, वो स्प्लिट हो रहा है, लेकिन उसका नेचुरल एफिनिटी बीजेपी की तरफ जाने के लिए। मैं
दलितों के कम से कम मैंने 50 गांवों में जाके स्टडी किया ये, हाँ। और मैंने मूल मुद्दा देखा कि जो राशन बांट रहे हैं इसका इम्पैक्ट कितना है, बाकी मुद्दे कितना है। दलितों में 101% में दावा कर सकता हूँ सबसे बड़ा डर ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आरक्षण को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही है, ये डर है उनके दिमाग में कि जिस तरह सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, रेलवे, बैंक, उनको लग रहा है सब कुछ बेच देंगे तो रिजर्वेशन बचेगा कहाँ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के पास जो दलित थे वो भी छिटक रहे हैं। दलित बीजेपी किसी कीमत पे प्लस नहीं कर पा रही है। सुनो, नहीं, वेस्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें एक मैं पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। वेस्ट में आप हमेशा देखिए ये जो जाट वोट है, पारंपरिक वोट है, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह के समय से ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहा है, तो उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। बल्कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता वहाँ ये तक कहते सुने गए कि जयंत ने गलती की, ये हमको गठबंधन नहीं करना चाहिए था, हमें जो मिलना है वो तो हमको वैसे भी मिलेगा, हमें क्या फायदा हुआ। तो पिछले चुनाव में सब पिट गए थे पूरा। और एक चीज़ और रही, जो हाथरस में जो दलित लड़की की रेप के बाद हत्या हुई थी और जयंत चौधरी के ऊपर वहाँ लाठीचार्ज हुआ था, वो वीडियो जयंत ने पूरे इलाके में वायरल किया। योगी आदित्यनाथ का ये कहना मैं गर्मी निकाल दूंगा, जयंत के ऊपर लाठियाँ पड़ते हुए वीडियो वायरल होना, तब वो जाटों ने कहा कि हम जाट हैं, हमको बहला तो सकते, मैं समझा नहीं सकती। वो कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक और 2022 के लिए नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये 2024 में जो मोदी का, अमित शाह का पिछड़ी जाति, गैर पिछड़ी जाति जो कॉम्बिनेशन बनाया था, इस चुनाव में पूरा ध्वस्त हो गया। केवल अखिलेश यादव के प्रोजेक्ट से कि पिछड़ी जाति उन्होंने गोल बंद करके एक खेमे पहुंचा दी जो 60% से ज़्यादा है। Do you agree with this the depiction of the Jats and the kind of self-stereotyping the Jats do about themselves? You see, what I have found on the ground has been this, that they have told me that this is not an election for them to fight. This is an election for them to defeat the BJP. So they are very clear on that. And we know that Western UP has a large Muslim population as well, which sways the vote. And Muslim leaders in that area also have been very clear on the fact that we are in this to defeat and not to win for our own selves. However, this election, one thing is for sure, that caste identity has come back in a greater manner than it was in the last couple of elections, which is why now some political watchers are saying, is this the return of Mandal 2 Okay. in UP's politics now? No, the thing is, normally after the first two phases of polling, we journalists, we normally can call the election. We say, this way, the trend is going this way. But my own personal sense is that, that we are still not in a position to call the election, which way the election is going. And especially, I think, ultimately, this churning is happening, there's no doubt about it. Especially the churning in the non-Yadav OBCs, away from the BJP, that's happening. And a section of non-Jatav Dalits are also moving away from the BJP. But I think ultimately the result will depend on the quantum of shift, whether the quantum is enough to defeat the BJP in 150 seats. See, the BJP losing in 100 seats is not enough. BJP losing in 100 seats is still the BJP is in the majority. आपका क्या कहना है? ये एक भ्रम है। देखिए, नैरेटिव तय करने में बीजेपी का सानी नहीं है। ये पहले दिन से बीजेपी के लोगों ने, मुझसे भी कहा, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अरे 2-2 सीटें भी हारे तब भी 100 सीट कम होगा, हमारे पास इतनी है। जिस समय वो इतनी थी तो उस समय सीन बदला हुआ था। यादव परिवार में लड़ाई थी, मुलायम सिंह, शिवपाल, अखिलेश सब लड़ रहे थे। नैरेटिव बहुत ख़राब था यादव परिवार का, और मोदी जी भगवान लगते थे लोगों को। मेरे दोस्त कहते थे तो भगवान विष्णु का अवतार है। 2017 तक मोदी जी के ऊपर डेंट नहीं था कहीं पे। मोदी जी आए, योगी जी का चेहरा नहीं था। उन्होंने कहा पिछड़ा मैं हूँ, मुझसे बड़ा पिछड़ा कौन है। यादव परिवार की लड़ाई थी, एक भगवान विष्णु जी अवतरित थे, वो कह रहे थे पिछड़ा मैं हूँ। इंटायर बैकवर्ड एक तरफ चला गया। लेकिन लोगों को लग रहा था पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बन गया योगी आदित्यनाथ। लोगों ने कहा चलो तब भी भगवा वस्त्र पहना है, सबको मैनेज करेगा। वो आदमी शुद्ध ठाकुर बाट पे आ गया। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, कभी भी अगली जाति का फेस रख के चुनाव नहीं जीता जा सकता। राजनाथ सिंह फेस थे, ऐतिहासिक हार हुई। अगर योगी आदित्यनाथ को ये फेस बना के रख देते कि मैं तो सन्यासी हूँ, तब भी काम चल जाता। अभी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 10 दिन पहले कहा कि मैं छत्री हूँ, मुझे गर्व है, मैं छत्री हूँ, भगवान राम भी स्कूल से आते हैं। तो लोगों को लगा तो फिर वही भाषा बोल रहे हैं। तो ये जो ठाकुर वाली फीलिंग है, ये गांव-गांव में चली गई है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बहुत बेइज्जती की गई, उनकी नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी गई, उन पर आरोप लगाए गए, बदनामी कराई गई। तो जिले जिले में ये है कि हमारे पिछड़ी जाति की बदनामी एक ठाकुर आदमी ने कर दी है। ये मुद्दा बीजेपी को बहुत भारी पड़ गया इस चुनाव में। ये तो
in other words, this is what Pooja was also saying, that that these castes have been brought in, but they have not been really integrated, and some inroads are being made by BJP. So, would it be right to say that this election is going to the wire, and the last 2 to 3 phases will ultimately decide who is ahead? आखिरी के 2-3 फेस बीजेपी के लिए पहले फेस से भी भारी पड़ने वाले हैं। मैं जिला बता सकता हूँ, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, अंबेडकर नगर। चुनाव आयोग की पाबंदी है, वरना मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बीजेपी को पता नहीं खाता खोलना मिलेगा नहीं मिलेगा। माय गॉड, पूर्वांचल बहुत खतरनाक स्थिति है। आज मुझे पता चला है पूर्वांचल के कुछ गांवों में, जिलों में भेजे गए हैं कुछ लोग कि वहाँ गांव में हवन, कीर्तन, रामायण शुरू कराई गई है कि हिंदू फीलिंग किसी तरह से पैदा हो जाए। पूरे चुनाव में मैंने 2012 का चुनाव देखा, 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, सबसे कम हिंदू मुसलमान इस चुनाव में। मुद्दा है कि आवारा पशु पूरा फसल उजाड़ गए, सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का। वो लोग मान रहे हैं आवारा पशु योगी आदित्यनाथ की वजह से आ गए हैं। पिछड़ी जाति सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 5 किलो राशन के लिए कह रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, 50 कुंटल तो गेहूँ, आटा, हमारी फसल सब साढ़ चौपट कर दे रहे हैं, जानवर चौपट कर दे रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। तो मुझे लग रहा है बीजेपी बहुत खतरनाक हालत में फंस गई है, एक ऐतिहासिक हार की तरफ उत्तर प्रदेश में मुझे तो कम से कम जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना एक्सट्रीमिस्ट व्यू न रखते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अल्टीमेटली बात यहाँ आती है कि आपके सामने चैलेंज ये है कि बीजेपी को 200 के नीचे लाएं। मुझे ऐसी कोई लहर दिखाई नहीं दे रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। जब सरकार बदलनी होती है तो एक लहर की ज़रूरत होती है। यहाँ लहर और भावना पर ही सारे चुनाव होते हैं हमारे देश में। इस तरह की कोई लहर समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं दिख रही। There are voices for change, but also this लाभार्थीज are also, I think। मैं एक बस केवल एक चीज करना चाहूँगा, बीजेपी के जो कोर बूथ हैं वहाँ वोट नहीं पड़ रहे। नहीं लाभार्थी, मुजफ्फरनगर, मैं आपको बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में कपिल देव अग्रवाल जी मिनिस्टर हैं। मेरे पास जो रिपोर्टर लाइव आया उसे वो शीट लेकर आया था। कपिल देव जी का यहाँ घर है, कपिल देव अग्रवाल का, 440 वोटों से वो जीते थे उस बूथ से। इस बार उस बूथ पे 300 वोट पड़े हैं। बालियान साहब केंद्र में मिनिस्टर हैं, उनके गांव में 92% पोलिंग होती थी, वहाँ 50% पोलिंग हुई है। बीजेपी का कार्यकर्ता निकल नहीं रहा है, उसमें खुशी नहीं है, उत्साह नहीं है। कारण 5 साल उसके काम ही नहीं हुए। सीएम के साथ शिकायत थी, विधायक, सांसद, मंत्री कहते रहते थे, सीएम सुनते ही नहीं थे। सीएम बदसलूकी करते थे, गाली देते थे। ये रिकॉर्ड है, एएनआई को उन्होंने लाइव कैमरे पे गाली दी, ब्यूरोक्रेट को उन्होंने गाली दी। तो ये मैसेज है कि हमारी तो अगर दोबारा आ गए तो हमारा काम होंगे ही नहीं। इनका कार्यकर्ता मायूस है, उनका कार्यकर्ता उत्साहित है, तो ये बड़ा असर डाल। लेकिन लाभार्थी तो है। लाभार्थी ये कह रहा है कि मेरे को 5 किलो राशन मिला, 5 कुंटल मेरी फसल चौपट हो गई, 5 किलो राशन मिला, महंगाई बढ़ गई, सरसों का तेल 225 रुपए हो गया। You agree with that? So I agree with the fact that the stray animals are causing a lot of loss, and just transferring 6,000 rupees into the accounts of farmers does not help them stand on their own feet. For instance, they say that you have added chana to what you are giving us. But chana was something we could have grown on our own had there not been these stray animals around. Okay. But one thing that Sanjay ji is saying, we also have to bear in mind that voting percentages have been low in this election. It's not as if it's, So what does it mean? I mean, what does it traditionally mean when voting percentages are low? That maybe it's really not that strong a wave against the incumbent government. Yeah. So as I was telling you, Sanjay has got to anchor a show in a few minutes from now. So we will let him go. Thank you very much, Sanjay, for being this. Deepak, you can come here. Teachers are also against the government because a lot of them died and the government refused to take responsibility for that. We find merit in both the Yogi Adityanath style of politics and functioning and the challenge that Akhilesh is throwing to the BJP.